Hello and welcome. Today in this class we're going to talk about an artistic and literary movement that is realism. Realism is a philosophy, it's a literary movement which takes its place in 1948. The founders of this philosophy were Mary Henry Boyle, and it started in France after Revolution of France. This philosophy of realism, it was a reaction against romanticism. The philosophy of Romanticism, which started in 1798 with the publication of lyrical ballads of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. The philosophers of that theory of Romanticism, they started to give focus on individualism. They started to give focus on imagination. They started to give focus on fancy. They started to give focus on supernaturalism. They started to give focus on nature. They started to take human away from the actual realities to pursue knowledge and equivalence in nature. But in 1948, when Mary Henry Boyle take a shift and the realism takes place, the name realism was given to this theory by Mary Henry Boyle. In this theory, we have seen a revolution of writing in which the focus was given to the class struggle. The focus was given to the commoners. The focus was given to, we can say, the social challenges were highlighted. In this, the vernacular language was written, in which we could see how, we can say, the upper class, they speak, how the middle, how the bourgeois class, how the, we can say, the lower class, or that particular section in the society, how they speak. So the representation of each and every class was given in this philosophy. In this philosophy, we see that the struggle of working class has been shown. We can see the ordinary life has been presented. We can see the life was presented with accuracy. The life was presented with actuality. How the life actually is, it has been presented in it. We can see that the middle class struggle, the conflicts of a human being, the conflict of life has been highlighted in this philosophy. So in other words, we can say that जो ये philosophy थी, जो realism philosophy 1948 में आ गई, जिसका जन्म फ्रांस में लिया था. रियलिज्म को रियलिज्म कहने वाले जो पहली जो राइटर थी, उसका नाम था मैरी हेनरी बॉयल. ये जो रियलिज्म एक फिलॉसफी है, ये रियलिज्म फिलॉसफी है रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म. जब अर्ली रोमांस, जब न्यो क्लासिकल राइटर्स लिखते थे, तो न्यो क्लासिकल राइटर्स जब लिखते थे तो उनके रिएक्शन में आ गए थे रोमांटिक्स. जो रोमांटिक्स लिख रहे थे, रोमांटिक्स वालों ने पहली बार जो फोकस दिया था वो इंडिविजुअल फिलॉसफी पे दिया था. जब उन्होंने फोकस दिया था, उन्होंने नेचर पे दिया था, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी पे दिया था, उन्होंने इमेजिनेशन पे दिया था, उन्होंने फैंसी पे दिया था. लेकिन उसके बाद जब रियलिज्म जन्म लेती है, उसके बाद राइटर्स आते हैं, उनका ये मानना था कि जो रोमांटिक फिलॉसफी है, शायद ये ह्यूमंस को अपनी रियलिटी से काफ़ी दूर ले रही है. ये इमेजिनेशन और फैंसी और बाकी चीज़ों में उलझा के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो रियलिटी इंसान की है, शायद उसे ये कहीं दूर इंसान को ले रही है. उसके बाद जब ये फिलॉसफी आती है, ये एक रिवोल्यूशन लाती है अपनी राइटिंग्स में. इस फिलॉसफी में क्या था कि इस फिलॉसफी में रियल वर्ल्ड और रियल प्रॉब्लम्स और रियल ह्यूमन बीइंग्स और उसके रियल स्ट्रगल्स को उन्होंने पेश किया. उन्होंने क्लास डिवीजन को दिखाया. उन्होंने जो अभी तक के राइटिंग्स थे, जो अर्लियर राइटिंग्स थे रोमांटिक्स के पहले, वहाँ पे या तो हमें किंग्स और नाइट्स की लाइफ दिखाई जा रही थी, या तो उसको पुअर क्लास दिखाई जा रही थी जो बिल्कुल जिनके पास खाने को कुछ नहीं था. लेकिन जब ये रियलिज्म आ गई, इन्होंने क्लास में दिखाया कि एक सोसाइटी में जो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जो मिडिल क्लास होता है, जो अपर मिडिल क्लास होता है, जो लोअर मिडिल क्लास होता है, जो लोअर मिडिल क्लास होता है, जो बोर्जुआज क्लास होता है, जो हायर क्लास होता है, उनके स्पीकिंग कैसे होते हैं, उनके मैनर्स कैसे होते हैं. हर किसी को पहली बार मिडिल और लोअर क्लास की रिप्रेजेंटेशन अपने राइटिंग्स में उन्होंने लाई.
उसके बाद जब हम बात करेंगे, इन्होंने वर्निकुलर लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। कौन सा क्लास किस लैंग्वेज में बात करता है और किस एटीट्यूड के साथ और किस बिहेवियर के साथ वो स्पीक करता है। और ये जो फिलॉसफी, जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी थी, ये आई थी फ्रांस में। जब ये फ्रांस में आई थी, वहाँ पे इसके राइटर्स जो बेल्जैक थे, या वहाँ पे इसके राइटर्स जो गस्टव फ्लॉबर्ट थे, वो इसके ओरिजिनल राइटर्स, जो इनिशियल राइटर्स जिसको हम बोलते थे। उसके ये बाद ये मूवमेंट ने पीक ले ली, और ये मूवमेंट पहुंच गई जब ये इंग्लैंड पहुंच गई, और वहाँ पे जो इसके राइटर्स बने थे, वहाँ पे जॉर्ज एलियट इसके राइटर थे, और वहाँ पे चार्ल्स डिकेंस इसके राइटर थे। जब ये मूवमेंट जब पहुंच गई रशिया, और रशिया में जो इसके फाउंडर थे, वो उनको हम पुष्किन जो है उसको हम जानते हैं कि ये वहाँ के फाउंडर थे। और जो रशिया में इसके राइटर्स थे, वहाँ पे हम देख सकते हैं लियो टॉल्स्टॉय है या फेडरिक दोस्तोयेव्स्की है। उसके बाद जब ये मोमेंट जब अमेरिका पहुँच गई, वहाँ पे इसके राइटर्स, वी हैड द राइटर्स लाइक मार्क ट्वेन, वी हैड द राइटर्स लाइक W.T. Howells over there. So this movement, it was taking the trend. It went with the publication of the rise of novel, in which the real life has been portrayed, and we see that the theme of this very particular theory, the theme of this particular genre, the particular theory, realism, we could say. What was the theme of this particular theory? It was the originality of life. The life has been portrayed as it is. उसके बाद हम मिडिल क्लास को शो करते थे, हम क्लास स्ट्रगल को शो करते थे। वो क्लास स्ट्रगल को शो कर रहे थे, उन्होंने मिडिल क्लास को शो किया, उन्होंने एक्चुअलिटी को शो किया, उन्होंने एक्यूरेसी को शो किया, उन्होंने कन्फ्लिक्ट्स को शो किया, उन्होंने जो एग्जैजरेशन है उसको बाहर निकाला, और अभी तक जो एथिकल मॉरल वैल्यूज थे उनको बाहर निकाला। जो एग्जॉटिक सबलाइम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक फिलॉसफी ने दिया था उसको बाहर निकाला, जो इमेजिनेशन थी उसको बाहर निकाला। लेकिन अब ये रियलिटी पे बात कर रहे थे, अब ये रियल स्ट्रगल्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग पे बात कर रहे थे। उसके बाद जो इस जॉनरा के जो इसके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, और फॉर एग्जांपल रियलिज्म में अगर हम देखेंगे, इसमें मैजिकल रियलिज्म आता है, इसमें हम सोशल रियलिज्म आता है, उसमें हम सोसाइटियल रियलिज्म आता है, उसमें किचन सिंक ड्रामाज आते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल रियलिज्म आता है, उसमें नेचुरलिज्म आता है। और बहुत सारे राइटर्स लाइक हमारे पास अभी सलमान रशीदी है, उसकी नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन है, या इसके अलावा इमारत ज़ोला इसकी बहुत बड़ी राइटर है। तो जो ये सारे राइटर्स हैं, इनकी यही फ़िलॉसफी थी कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो इनके एक्चुअल थीसिस हैं, जो इनके एक्चुअल बिलीफ्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। इनको भटका के किसी और मामले में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इमेजिनेशन और फैंसी से निकालने के बाद, क्योंकि हर एक मोमेंट जो आती है वो रिएक्शन आती है एक मोमेंट जब स्टार्ट होती है, वो मोमेंट पहले बुनियाद रखती है, उसके बाद राइज लेती है, पीक पे पहुंचती है, और वहाँ से एक अलग मोमेंट जन्म लेती है। देन अनदर मोमेंट टेक्स प्लेस, वो मोमेंट फिर से बनती है, फिर से पीक पे पहुंचती है। ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट अनदर थिंग और अनदर एलिमेंट टेक्स प्लेस, दैट्स द न्यू थ्योरी एंड दैट्स द न्यू फिलॉसफी। This was a short on realism. We will talk in detail on realism. Stay tuned. Bye.